It's the temperature at which the vapor pressure solution become equal to external atmospheric pressure. That is called simple boiling point definition. Now what happens if you draw a graph for vapor pressure versus temperature? ठीक, तो आपको ऐसे ग्राफ मिलता है. क्या होता है? विद राइजिंग टेम्परेचर फॉर ए लिक्विड वेपर प्रेशर कीप ऑन इंक्रीजिंग. फॉर ए लिक्विड विद राइजिंग, ये आपको ग्राफ दिया सॉल्वेंट के लिए. For a solvent with rising temperature, vapor pressure keep on increasing. Now what happens? One point can be taken. It is suppose pressure of atmosphere is 1 atm. ये 1 atm क्या है? Atmospheric pressure ले लिया. 1 atm यहाँ पे क्या है? It is atmospheric pressure. So what happen? With rising temperature, vapor pressure keep on increasing. At the temperature where the vapor pressure of solvent become equal to 1 atmosphere, that is pressure of atmosphere. That temperature is called what here? Boiling point of solvent. So this T naught B can be taken as the boiling point of solvent. Now what happens if you take a solution at same temperature? तो क्या होता है? solution ग्राफ ऐसे मिलता है. solution क्या होता है? ये हमारा ग्राफ है solution के लिए. ये है ग्राफ solution के लिए. तो क्या होता है? same temperature solution है lower vapor pressure. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं in the topic taken relative lowering of vapor pressure. if a solution contain solute कैसा हुआ? non volatile. then compared to pure solvent, solution have lower vapor pressure. then compared to solution, a solvent solution have lower vapor pressure. ऐसे ग्राफ को मिलेगा solvent ग्राफ solution का. that means to make solution vapor pressure equal to 1 atmosphere, we need to heat solution to further high temperature. this TB can be taken the boiling point of solution and it is called delta TB. delta TB क्या होता है? elevation of boiling point. means compared to pure solvent, by how much amount solution have higher boiling point. so this delta TB is what? it is TB minus T naught B. you can see from here clearly that delta TB हुआ elevation means यहाँ पे TB क्या होता है? it is boiling point of solution. T naught B क्या है? boiling point of solvent. T naught B क्या है? boiling point of solvent. compared to solvent solution of higher boiling point. कितना higher होता है? उसी को बोलते हैं elevation of boiling point. जितना higher है उसको बोलते हैं उतना elevation of boiling point. now this delta TB is found to be directly proportional to what? molality of solution. m क्या है solution का? molality. तो delta TB is directly proportional to the molality of solution. delta TB is directly proportional to molality of solution m. when delta TB is directly proportional to molality, we can write expression delta TB removing sign of proportionality, take kb. kb is constant of proportionality called elevation constant. और molality क्या होता है? that is one expression. molality can be expressed on more way. kb, what is a formula of molality? weight of solute upon molar weight solute. wa, w आपका होगा weight of solvent. if it is in grams, then into लेते हैं 1000. ये आपका फॉर्मूला एक और आएगा फॉर डेल्टा टीबी कैलकुलेशन. इस फॉर्मूले में क्या होता है? डेल्टा टीबी ऑलरेडी आपको बोल दिया है. डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. डब्ल्यू बी क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स. एम बी क्या होता है? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट. और डब्ल्यू ए क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट in grams. in this formula if I take 1000 तो kg लोग नहीं लेंगे तो kg लेने पे. और क्या हुआ इस रिलेशन में? एक टर्म है kb. kb को क्या बोलते हैं? this kb is called as molar elevation constant. molar elevation constant. molar elevation constant is kb, or it is also called as ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant. kb is called ebullioscopic constant or molar elevation constant. The value of kb is different. It is different for different solvents.
ये क्या होता है, केबी होगा सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, केबी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट केबी विल बी डिफरेंट। इसका रिलेशन क्या होता है केबी के लिए, अगर आपको देखना हो फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स, तो केबी कैन बी गिवन बाय एक्सप्रेशन, विजिबिलिटी कम हो जाएगा बोर्ड पे, केबी का रिलेशन क्या होता है, आर टी नॉट बी स्क्वायर बाई 1000 एल बी, और आर टी नॉट बी स्क्वायर इंटू एम ए बाई 1000 डेल्टा एच वी, और ये स्क्वायर होगा, और आर टी नॉट बी इंटू एम ए अपॉन 1000 डेल्टा एस वी। पूरा दिख रहा है बोर्ड पे, यहाँ पे स्क्वायर है, टी नॉट बी स्क्वायर, ये सब आपका कैलकुलेशन में आपको हेल्प करते हैं डेल्टा के बी का कैलकुलेशन में। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। इसमें टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, आर इज द गैस कांस्टेंट टू बी टेकन एनर्जी यूनिट्स। मेंस में नहीं पूछता है, जेई नीट में नहीं पूछेगा, बट एडवांस में थोड़ा सा इक्वेशन आना चाहिए आपको है। आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट इन आइदर कैलोरी और जूल्स, इन कैलोरी और जूल यूनिट्स एज पर द इंफॉर्मेशन अदर गिवन। टी नॉट बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, टी नॉट बी। और यहां पर एल बी क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन कैलोरी पर ग्राम और जूल्स पर ग्राम। अब यूनिट का आपको खेल देखना पड़ेगा खुद ही है। टी नॉट भी हो गया, एम ए क्या होता है, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच बी क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इट इज इन जूल्स पर मोल और कैलोरी पर मोल। डेल्टा एस बी क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ये भी जूल्स पर मोल पर केल्विन होता है। रिलेशन क्या होता है, एंट्रोपी, इसका देखो एल बी क्या होता है, डेल्टा एच बी अपॉन मोलर वेट सॉल्वेंट, और डेल्टा एस क्या होता है वेपराइजेशन का, इट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी नॉट बी। ये आपके रिलेशंस हेल्प करते हैं इन सारी इक्वेशन को देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर होता है गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, आइदर कैलोरी और जूल्स में होता है। कैलोरी में क्या होता है 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, जूल्स में होता है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन स्केल। एल बी क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन कैलोरी पर ग्राम। एम ए होता है मोलर वेट सॉल्वेंट का। डेल्टा एच बी इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इट इज इन जूल्स और कैलोरी पर मोल। इसका यूनिट क्या होता है, कैलोरी में हमने पर मोल में, इट इज इन पर मोल, कैलोरी पर मोल। आपको पता तो होगा यार, ये भी होगा पर मोल में दोनों वैल्यू होते हैं। एंट्रोपी का रिलेशन क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टी नॉट बी। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, टी नॉट बी इनटू डेल्टा एस बी। तो टी नॉट बी स्क्वायर नहीं होता बिकॉज वन टी नॉट बी इज कैंसिलिंग आउट। देखो ना, अगर आप पुट करते हैं डेल्टा एच को यहाँ पर टी नॉट बी इंटू डेल्टा एस वी, तो वन स्क्वायर से टी नॉट बी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा दे दिया है, ज्यादा है तो देख लीजिए।
Yes, sir. Done. हो गया। तो ये आपका प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन में मेरा एलिवेशन क्या होता है, कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन हैव लोअर वेपर प्रेशर, देन टू मेक सोल्यूशन वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm we will heat solution to further higher temperature. How much higher? The temperature at which the solution vapor pressure is 1 atm will be called as boiling point of solution. TB क्या है, boiling point of solution. T नॉट B क्या था, boiling point of solvent. तो कंपेयर टू सॉल्वेंट सोल्यूशन ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट कितना हायर होता है, दैट इज डेल्टा टीबी, दैट्स कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट। डेल्टा टीबी क्या होता है, डिपेंड करता है मोलैलिटी के ऊपर कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट डाल रखा है पर केजी सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी को बोलते हैं केबी इनटू एम। एम का इक्वेशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर वेट सॉल्यूट डब्ल्यू एक ग्राम में होने पे हुआ 1000, इफ इट इज केजी तो 1000 इज नॉट टेकन। हमारा एम क्या है, मोलैलिटी चाहिए होता है। केबी का जो वैल्यू होता है डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। कैसे, फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट एल बी एच और एम एस दैट डिफरेंट। सो फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट वैल्यू ऑफ केबी विल बी डिफरेंट। वाटर में केबी होता है 0.512 एग्जाम में मिलता है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है कि कितना केबी का वैल्यू है, किस सॉल्वेंट का कितना होता है, रट्टा मारने का नहीं। आपको हर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मिलता है उसमें केबी का वैल्यू मिलता है, आपको रट्टा नहीं मारना केबी के लिए। जो वैल्यू में जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्वेंट के लिए केबी मिलता है आपको क्वेश्चन में। ये हमारी प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगला जो प्रॉपर्टी है कि मैं इकट्ठा से लिखा है, मुझे थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाता है। एक प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इसको होता है डेल्टा टी एफ। द स्टडी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी। इसमें रिलेशन क्या होता है, डेल्टा टी एफ विल बी टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है कंपेयर टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट एफ को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यहाँ पे होगा टी एफ के एफ होता है, यहाँ पे के एफ बोलेंगे डेल्टा टी एफ को लेने से। डेल्टा टी एफ बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और सब कहानी सेम ही है। यहाँ पे इसको एलिवेशन बोलते हैं डिप्रेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अगेन डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेशन के एफ का लिखते हैं तो के एफ क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा, यहाँ पे टी नॉट एफ होगा। एल एफ बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे लिखा है वेपराइजेशन ब्रैकेट फ्यूजन। फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एच एफ कहीं भूल चुका तो देख लेना, ट्राई तो किया सब कुछ ठीक करने का, फिर भी कहीं कुछ रह गया हो। यहाँ पे बोलेगा फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ग्राफ लेकिन चेंज होगा इसमें। मैंने आपको फोटो भेजा ही जैसे पिछले पेज का, आई थिंक आई फॉरगॉट। ओह माय गॉड, somebody have noted the previous point फोटो के लिए? Yes, sir. You can send if you have taken screenshot. Just please.
किसी ने दिया है स्क्रीनशॉट बच्चे ने? कोई बच्चा जो थोड़ा सा आलसी हो, लिखने का मन कम करता है उसका, माइट टू टेकन स्क्रीनशॉट। इफ सम अदरवाइज कैन शेयर इन द ग्रुप, जिसका अच्छा हैंड राइटिंग है दे कैन सेंड इन द ग्रुप। ये हमारा ग्राफ होगा, लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है। ये आपका होगा सॉलिड सॉल्वेंट होगा, सॉलिड सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलेंगे क्या, टी नॉट एफ। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इफ यू टेक द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा टी एफ, और ये होता है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज डेल्टा टी एफ। इसको एक बार लिख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद में। भेजा किस बच्चे ने फोटो? चलिए मैं आपको ये हैं, हाँ हाँ भेजो, जल्दी जल्दी भेजो, फिर मैं अगला फोटो भेजूंगा। यस, सेंड क्विकली। Yes, sir. देखना कहीं पे कुछ पॉइंट सेम तो नहीं रह गया है। ट्राई तो किया सब कुछ चेंज करने का, फिर भी कहीं पे चेंज तो ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है। सर हाँ जी, सर वो मैं सिर्फ KDF TB टीवी कहाँ लिख दिया है? सर TB सर पूरा लास्ट में सर लास्ट लाइन मोलर डिक्रीज ऑफ कांस्टेंट इधर क्यों, अच्छा उधर में? नहीं सर मिडिल वाले कॉलम में सर कहाँ पे मिडिल कॉलम में रह गया? टीवी तो कहीं दिखाई नहीं मैंने। अच्छा ये ओके, ये हाँ सर ये बोल रहा था सो आई टोल्ड यू कि देख लेना, भूल चूक लेने देनी कि एफ होता है। यस, ये होता है कटिंग पेस्ट में, कहीं ना कहीं पे नकल मारने में कुछ कॉमन रह जाता है। नकल क्या है, मेरे टाइम पर बचता है ना क्वेश्चन दिखाने में। आई कैन यूज दिस टाइम फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग।
चलिए तो कहानी सब सेम की हो। देखो यहाँ पे खाली ग्राफ समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, एक हाउ वी डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर? द टेम्परेचर at which the liquid and solid state of a substance are coexisting or they are in equilibrium. Some solid change to liquid, at the same time some liquid change back to solid. So temperature at which the liquid and solid state of a substance are coexisting, that temperature will be called as the freezing point temperature. तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपका लिक्विड सॉल्वेंट दिया है with lowering of temperature, vapor pressure keep on decreasing. Then at one temperature where solid and liquid are in equilibrium, that temperature will be called as T naught F, the freezing point of solvent. And once a liquid is solidified, ये ग्राफ था लिक्विड सॉल्वेंट के लिए और ये एकदम स्लोप दिया है, रैपिड चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर। किसके लिए? सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। क्यों? बिकॉज solids have much lower vapor pressure. Solids have much lower vapor pressure as compared to the liquids. So when the liquid is solidified, there is rapid decrease in the solvent vapor pressure. Got it? Yes, sir. तो एक ग्राफ मिलता है। अब होता क्या है, when solution is taken at same temperature, then what happen? It have lower vapor pressure. It cannot freeze here. तो freezing कहाँ पे होता है? देखिए during cooling of a solution, the solvent will first form solid solvent, and that will separate out from solution by forming solid solvent. So for a solution to have freezing point, the graph will be meeting at solid solvent curve. जहाँ मीट करता है वो होता है TF. TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. TF क्या हुआ इसमें? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. T नॉट F क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. आप देखो ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि सपोज यू कीप द पेप्सी बॉटल इन फ्रीजर. आप कभी देखते हो प्रैक्टिकल करके भी कि ज़्यादा ठंडा पीने का मन करता है तो यू कैन कीप पेप्सी या जो भी आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, इफ यू कीप इन फ्रीजर. तो क्या होता है फ्रीजर में? इन द बिगिनिंग आइस स्टार्ट सेपरेटिंग आउट. अगर आप देखेंगे कि कभी शेक करके अगर पूरा कंटेंट फ्रीज नहीं होता है तो पहले क्या होता है, सॉल्यूशन से आइस अलग होता है. आइस विल सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन. आइस मीन सॉल्वेंट. तो क्या होता है, व्हेन ए सॉल्यूशन विल बी कूल्ड, ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ सॉल्यूशन द सॉल्वेंट विल फर्स्ट फॉर्म क्रिस्टल्स और एज सॉलिड सॉल्वेंट एंड स्टार्ट सेपरेटिंग आउट फ्रॉम सॉल्यूशन. तो व्हेन सॉल्यूशन विल बी कूल्ड, सॉलिड सॉल्वेंट सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन फर्स्ट. तो ये आपका ग्राफ जहां मीट करता है उसको बोलते हैं TF. TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. T नॉट F क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. तो कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऑफ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर होता है? दैट इज डेल्टा TF. डिप्रेशन वहां पे था, एलिवेशन, यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो डेल्टा TF का स्टडी होता है प्रॉपर्टी का, उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी. बाकी सब कहानी सेम टाइप की होती है कि अगेन डिपेंड करता है कि मोर वी एड सॉल्यूट तो ये और नीचे होगा ग्राफ. तो सॉल्यूशन ऑफ लोअर एंड लोअर TF और डेल्टा TF विल बी हायर. बाकी क्या होता है फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स KF विल बी डिफरेंट. वाटर में KF का वैल्यू होता है 1.86. आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन मिलता है. तो ये हमारे पॉइंट होंगे इसके लिए. फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट वी कैन यूज दिस रिलेशन. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी पढ़ा दी आपको मैंने, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इन रिलेशन के ऊपर है. ऑल ऑफ यू हैव DPP की दी हूं. मैं आपको वहीं से क्वेश्चन बोलता हूं DPP डायरेक्टली. अच्छे क्वेश्चंस हैं. आपको जो DPP 3 आपको दिया है, कहां चला गया DPP 3? सब बच्चों को DPP मैंने है तो उसमें, लेकिन वो सीक्वेंस पेज नंबर उल्टा हो गया है. वो भेज तो दिया मैंने बट अब पेज नंबर में करेक्शन इसका नहीं कर पाया, चेंज नहीं कर पाया उसमें. आप लास्ट पेज को 1 लेंगे फिर 2 उल्टा चलेंगे सीक्वेंस को. सब बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है. Sir, पूरे last वाले sheet नहीं DPP नंबर 3 हो, यहाँ पे लिखा ना DPP नंबर 3 लिखा है, वो खोलिए.
मिला DPP3 यहाँ लिखा है ना, वही उसी के लिए लिखा 1 to 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लेट अस डू सम फ्रॉम देयर सम क्वेश्चंस। आप करेंगे उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 करो उसमें से। क्वेश्चन नंबर 3, DPP3 क्वेश्चन नंबर 3। DPP3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपको दिया है यहाँ पे, when 174.5 मिलीग्राम ऑफ octa atomic sulfur is added to 78 gram of bromine. The boiling point of bromine is आपको निकालना है। आपको गिवन क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में? Kb of bromine is liquid, 5.2 केल्विन kg पर मोल, ऑल वेट केल्विन पर मोलर। Kb दिया है ब्रोमीन का, और दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन 332.15 केल्विन। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है। सर हाँ, सर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन निकालना है और इंफॉर्मेशन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन दिया हुआ है। एक मिनट में क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा मुझे। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन का तो खैर एक मिनट क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे एक बार फिर से। सॉल्यूशन का निकालना पड़ेगा ना, ब्रोमीन का नहीं। ओके, सॉल्यूशन का होगा इसमें, सॉल्यूशन का लो यहाँ पे। मतलब सॉल्यूशन का निकालना होता है ना, ब्रोमीन सॉल्यूशन अगर बनाएगा तब उस केस में कितना आएगा बॉइलिंग पॉइंट, ये निकालना आपको है। देखिए कैसे करें इस क्वेश्चन को यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या होता है? एस ऑक्टा एटॉमिक सल्फर का मीनिंग क्या है? S8 होगा। तो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट? 174.5 मिलीग्राम होगा। टेकन ग्राम 174.5 बाई 1000 ग्राम करोगे। व्हाट इज मोलर वेट सॉल्वेंट? कितना होगा? 8 into 32 कर दोगे, S8 होगा ना। ऑक्टा एटॉमिक मतलब सल्फर के अंदर कितना है? 8 एटम्स।
ये फॉर्मूला होगा। तो व्हाट इज मोलर वेट ऑफ सल्फर, 8 इंटू कर दोगे 32, WA क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 78 ग्राम ब्रोमीन। ब्रोमीन का कितना आएगा, ब्रोमीन का मोलर वेट चाहिए, केवी ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, केवी कितना दिया ब्रोमीन के लिए 5.2 केल्विन पर मोलर। तो हम डेल्टा टीवी निकालेंगे पहले, कितना है डेल्टा टीवी का वैल्यू, केवी इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट सॉल्यूट अपॉन WA, इफ इट इज इन ग्राम्स तो क्या करते हैं, इनटू करते हैं 1000 यहाँ पे। तो केवी दिया है 5.2, WB दिया है 174.5 मिलीग्राम में है, टेकिंग ग्राम, बाई कर दो 1000 यहाँ पे। MB दिया है मोलर वेट 32 इंटू 8 कर दोगे, और सॉल्वेंट का वेट दिया है 78 ग्राम, इंटू करेंगे 1000, तो 1000 से 1000 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा इसमें। यहां से क्या आपको मिल जाएगा डेल्टा टीवी का वैल्यू। तो यहाँ पे आपका डेल्टा टीवी बहुत कम आ रहा है, 0.045 आ रहा है करीब। देन फॉर सोल्यूशन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये ऐड हो जाएगा 332.15 प्लस 0.045, कितना आएगा सॉल्वेंट से, हाँ जी सर 332.195 332.195 आ रहा है, 332.195 बहुत कम नहीं हो गया। जो भी आंसर है तो आपका आंसर आएगा केल्विन में। आंसर कितना दिया है इसका, ठीक है ना, मैच कर रहा है ना, आंसर नहीं कर रहा है, Yes, sir. ठीक है, नहीं कर रहा है, Correct, sir. अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का, क्योंकि यूनिट में बच्चे गलती करते हैं कई बार, यूनिट में गलती करते होगे तो उड़ जाओगे फिर। अगला क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसमें फिर आगे चलेंगे, उसके बाद में टाइम बचेगा तो आज आपको पढ़ा देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी। अगला क्वेश्चन दिया है अगेन ऑन बॉइलिंग पॉइंट, दिया है ए सॉल्यूशन ऑफ, ए सॉल्यूशन, आपको जो डीपीपी अपना घर से करना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूं एक्स्ट्रा। ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute in water has boiling point 375.3 Kelvin. Calculate the vapor pressure of water above the solution at 338 Kelvin, given P naught of water is 0.2467 atmosphere at 338 Kelvin. kV for water 0.52 केल्विन पर मोलर, और केल्विन केजी पर मोल बोलते हैं इसका यूनिट्स, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
0.15 केल्विन। ट्राई करना है, Yes, sir. करो। Yes, sir. देखो मैं आपको मैं एकदम इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एकदम इजी आता है आपका बोर्ड में ऐसा आएगा, केवल पुट करना है वैल्यूज फॉर्मूला के अंदर, आंसर निकल जाता है। मैं थोड़ा क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़े। हो गया आंसर? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हो रहा, इजी क्वेश्चन था वैसे। चलिए देखते हैं। देखो इसमें करना क्या है, हमें दिया है बॉइलिंग पॉइंट का इंफॉर्मेशन, तो डेल्टा टीबी निकाल सकते हो। व्हाट इज डेल्टा टीबी? टीबी माइनस टी नॉट बी करने से कितना आएगा? टीबी दिया है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 375.3 माइनस 373.15 कितना जाएगा? 2.15। ये होगा डेल्टा टीबी का वैल्यू।
यहाँ पे हमें मोलैलिटी नहीं दिया है, बट हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। देखो एक्चुअली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पीएस, हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मींस हमें पीएस का रिक्वायरमेंट है। पीएस कैलकुलेशन में क्या क्या चाहिए होता है, हमें रिक्वायर्ड है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सॉल्यूट का, मोलैलिटी पता होगा निकल जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट से निकाल सकते हैं मोलैलिटी। डेल्टा टीवी कितना होता है, केबी इंटू एम, केबी इंटू एम, एम क्या हो जाएगा इससे, डेल्टा टीवी कितना है 2.15 बाई केबी कर दो, केबी कितना है 0.52, ये हो जाएगा आपको मोलैलिटी। फ्रॉम हियर हाउ मच विल बी मोलैलिटी सॉल्यूशन निकाला, निकालो कितने का मोलैलिटी कैलकुलेशन करके, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यार मुझसे कैलकुलेशन कराते हो तुम लोग यार। 4.1. अच्छा 2.15 बाई 0.52, 4.13 आ गया। ये आ गया मोलैलिटी। आपके मोलैलिटीज क्या होता है, यहाँ पे 4.13 मोलल का मीनिंग क्या होता है, मोलल मींस 4.13 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर। हमारा एम क्या था, पी नॉट, देखो हमारा क्या होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। हमें पी एस रिक्वायरमेंट था ना, या हम पी एस लिखेंगे तो क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए। कैन आई राइट, Yes, sir. पी नॉट दिया है, ये होता है पी नॉट, निकालना क्या है पी एस। एन बी क्या लेवल डायरेक्ट यहाँ पे, तो वी कैन टेक, सो इफ एन बी ले लेंगे यहाँ पे 4.13 मोल्स, देन व्हाट इज एन ए, 1000 by 18, कैन बी राइट। एन बी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट का मीनिंग कितना है, कितना होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, 1000 by 18 कर दोगे तो बस हो गया। पी नॉट आपको दिया है, एन बी 4.13, एन ए 1000 by 18, पी नॉट आपको दिया था 0.2467, क्या रह गया, पी एस रह गया है। हो जाएगा, पी एस नहीं हो पाएगा। Yes, sir. और एक तरीका होता, कितना होगा पी एस का वैल्यू, पी नॉट इंटू एक्स ए, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ले लोगे तो पी नॉट कितना है 0.2467, एक्स ए कितना होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है 55.55, अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट 55.55 प्लस 4.13, हो गया डायरेक्ट आंसर। आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि पी एस क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा, पी नॉट ए एक्स ए, एक्स ए कितना होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट आपको दे देगा पी एस का वैल्यू। गॉट इट। Yes, sir. आप कोई सा तरीका लगा दीजिए, पी एस आपका रहेगा सॉल्व करने से 0.23 एटमॉस्फेयर, ये इसका आंसर रहेगा। समझ आया कि नहीं आया, Yes, Yes. Yes, sir. थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग चलाया करो, चलना चाहिए दिमाग को, और चलाओ। आगे चले, Yes, sir. एक क्वेश्चन और लेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अभी इनफैक्ट और लूंगा इस टॉपिक में मैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन वाटर फ्रीजेस एट -0.30 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर
at 298 Kelvin is 23.51 millimeter of mercury, and Kf for water is 1.86 Kelvin per molar. Then find vapor pressure of solution at 298 Kelvin. देखो होता क्या है, मोलैलिटी क्या होता है, इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. मोलैलिटी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. सो कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन. ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का ही है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका इसका आंसर सबका आना चाहिए ठीक से. डू दिस क्वेश्चन क्विकली. हो गया आंसर. कैलकुलेशन पार्ट बाकी है.
चलिए कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा इसमें। इसको भी सेम टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। देखो कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोगे 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर वाटर यू कैन टेक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज डेल्टा टीएफ, टी नॉट एफ माइनस टीएफ करोगे। फॉर वाटर वी टेक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस करोगे -0.3 तो 0.3 हो जाएगा। देन डेल्टा टीएफ कितना होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, तो कितना है आपका मोलैलिटी डेल्टा टीएफ अपॉन के एफ। डेल्टा टीएफ है 0.3, के एफ था 1.86, इतना ही तो होगा ना। Yes, sir. तो कितना का मोलैलिटी निकाला 0.16. 0.16 Yes, sir. 16 से 15 ओके 16 ले लिया, कोई बात नहीं। तो मोलैलिटी मिल गया आपको 0.16। अगेन यू कैन यूज सेम पॉइंट कि हमें निकालना क्या है, पी नॉट, अगेन सेम फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस करेंगे या सिंपली ले लेंगे यहाँ पे पी एस कितना होगा, पी नॉट इंटू एक्स ए। एक्स से क्या लगोगे, पी नॉट आपका दिया है 23.51 इंटू एक्स से क्या लगोगे 0.16 बाई 0.16 सॉरी 55.55 बाई 55.55 प्लस 0.16 हो गया। दैट्स ऑल। आर्गुमेंट कैसे का है, इसका मीनिंग क्या था, मोलैलिटी का था ना, कैसे था 0.16 m का मीनिंग क्या होगा, 0.16 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम और ऑफ वाटर और 1000 बाई 18 मोल्स वाटर 55.55 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल्स बाय सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मोल्स आपका मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का इनटू 23.51। दैट विल गिव यू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? Yes, sir. एक अगला क्वेश्चन इसमें एक और लिखेंगे यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन हाँ कौन सा, अरे यार 1000 बाई करो ना, 18 डिवाइड करने से आता है 55.55। 0.16 मोल सॉल्यूट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट क्या है, वाटर है कि नहीं है, वाटर का कितना होता है मोलर वेट 18 होता है, तो 1000 बाई 18 कितना आता है, ये है सॉल्वेंट का मोल्स। भाई सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मोल्स क्या देगा, मोल फ्रैक्शन देगा सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट क्या देगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मुझे पढ़ लो। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 1 kg of aqueous 1 kg of 0.75 molar aqueous solution of sucrose is cooled and maintained at -4 degrees Celsius. Then find the amount of ice that separate out from solution. K F दिया है सॉल्वेंट का 1.86 केल्विन पर मोलर। के एफ है सॉल्वेंट का 1.86 केल्विन पर मोलर। ट्राई करना इस क्वेश्चन को। इसका हिंट यही होता है कि व्हेन सॉल्यूशन इज कूल्ड सॉलिड सॉल्वेंट विल सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। जो बच्चा आंसर ठीक करके बोलेगा विल गेट चॉकलेट फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज अ चॉकलेट क्वेश्चन।
जिसका भी ठीक रहेगा बच्चे का चॉकलेट मिलेगा बच्चे को, बट मिलेगा आप कैसे भेजेंगे? ऑनलाइन भेजेंगे फिलहाल तो मैं, ऑफलाइन जब कभी मिलोगे तो खिलाएंगे। करो करो, अच्छा शाबाशी दे सकते हैं यहाँ से एटलीस्ट। हो गया आंसर? सर थोड़ा सा ओके। सर सर हाँ बच्चे लोग शुरू करें। सर उसका आंसर 51.31 होगा। कितना? सर 518.31 ग्राम।
हाँ, यू विल गेट वन चॉकलेट, यस करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? एक चॉकलेट चला गया, अभी भी चॉकलेट बचे हुए हैं। जो बच्चा बोलेगा आंसर उसको अपना फोटो भेजना पड़ेगा सोल्यूशन का। यू सेंड सोल्यूशन ऑफ योर सोल्यूशन ऑफ दिस इन फोटोग्राफ इन द ग्रुप। ओके सर। नहीं सर, मेरा 4 किलो की क्लास है। 4 किलो तो है ही नहीं, सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो 1 किलो है। नहीं सर, वेट ऑफ ये आइस कितना? 3.89 समथिंग है। नहीं 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 नहीं, वो जो आंसर बच्ची ने बोला वो ठीक बोला सासुद्दीन ने। इट्स 518 या 519 के आसपास आंसर आपका आ जाता है। तो 518 है, 519 है, डजंट मैटर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत टाइम देना पॉसिबल नहीं पाएगा इसमें। देखो इस क्वेश्चन का अप्रोच का आइडिया क्या है। इस क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन जब कूल करते हैं तो क्या होता है, ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा टीएफ आपका बढ़ता है। तो डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हैं? इट इज केएफ इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर वेट सॉल्यूट। इफ आई टेक डब्ल्यू एज सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो यहां पे करेंगे 1000 करना पड़ता है, ठीक। तो ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या चेंज होता है? देखो केएफ तो फिक्स ही है, चेंज होना नहीं कभी भी होता है। एमबी भी फिक्स होता है। सुक्रोज दिया है, इसका कितना होता है मोलर वेट सुक्रोज का? 342 मोलर वेट है। यहाँ पे क्या होता है, पहले सॉल्यूशन इज कूल्ड, आइदर वी ऐड देन डेल्टा टीएफ इंक्रीजेस। व्हेन डेल्टा टीएफ इंक्रीज देन आइदर वी शुड ऐड मोर सॉल्यूट, पॉसिबल नहीं है। और वी डिक्रीज सॉल्वेंट, तो व्हाटएवर सॉल्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाटएवर सॉल्वेंट इज अनवांटेड, दैट सॉलिड एंड दैट सॉल्वेंट विल कन्वर्ट टू सॉलिड सॉल्वेंट एंड सेपरेट आउट। यहाँ पर क्या है, आइस बनता है वाटर लेने से, तो जितना सॉल्वेंट हमें नहीं चाहिए उतना सॉल्वेंट क्या करेगा, दैट फॉर्म आइस एंड सेपरेट आउट। तो हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू भी निकालना पड़ेगा, कितना वेट इस सॉल्यूशन के अंदर है, और फिर निकालोगे डब्ल्यू ए। डब्ल्यू क्या है, इतना सॉल्वेंट का वेट होना चाहिए, दैट द वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट शुड बी देयर इन सॉल्यूशन, दैट द वेट ऑफ सॉल्वेंट remaining in solution, remaining in solution कब? डेल्टा टी एफ कितना होगा इसमें? देखो डेल्टा टी एफ कितना लिखोगे आप यहाँ पे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ करोगे। टी नॉट एफ कितना? 0 माइनस माइनस -4, तो 4 आ जाएगा इसमें। देखो डेल्टा टी एफ किसी भी ले लो सेम ही रहेगा, 4 आएगा। डेल्टा टी एफ 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू बी चाहिए। अगर डब्ल्यू बी निकल जाएगा तो ये डब्ल्यू ए निकल जाएगा। हमें इसमें करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन जो हमें दिया है 1 kg, उसमें कितना सॉल्वेंट का वेट है और कितना सॉल्यूट का वेट है, पहले वो निकालोगे। ये मैं क्वेश्चन का आपको समझा दिया इसकी कहानी। अब आते हैं, देखो हमारा दिया है 0.75 मोलल। इसका मीनिंग क्या होता है? 0.75 मोलल मीन्स 0.75 मोल्स और 0.75 इंटू 342 कितना हो जाएगा ग्राम में यहाँ पे निकालने से? 256.5 ग्राम हो जाएगा। ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन का मतलब है कि अगर हमारा मोलैलिटी 0.75 दिया है तो इसका मीनिंग 0.75 मोल्स। सुक्रोज आपका सॉल्यूट है तो 0.75 into 342 कितना होगा? दैट इज 256.5 ग्राम of sucrose is present in 1 kg 1000 gram solvent. How we define molality? Moles of solute present in 1 kg solvent. Moles of solute present in 1 kg of solvent. Are you getting this point? Yes sir. Yes sir. तो ये आपका आ गया सॉल्वेंट। अब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1256.5 ग्राम, दोनों ऐड कर लिया। सॉल्यूशन हैज हाउ मच सॉल्यूट? 256.5 ग्राम। यहाँ पे हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? सॉल्यूशन दिया है 1 kg, तो 1 kg मींस 1000 ग्राम सॉल्यूशन हैव हाउ मच सॉल्यूट? तो 256.5 अपॉन करोगे 1256.5 इनटू करोगे 1000 ग्राम्स, है ना? तो ये आएगा अराउंड 20 कितना रहा है
कैलकुलेशन आप मुझसे करवा रहे हो यार, चलो मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन भी। ये अगर 204 का जाएगा 204.1 ग्राम, रफली 204 लिखते हैं। ये हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट W हो जाएगा, WP हो गया। देन व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ओरिजिनल, तो 1000 माइनस कर दोगे आप यहाँ पे 204 कितना हो जाएगा 796 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास WA कितना हो जाएगा ये निकालना है, WB आपको मिल गया, ये है 204 ग्राम। अब कितना सॉल्वेंट बचा रहेगा सोल्यूशन, इसको निकाल पाएंगे। तो ऑन सॉल्विंग फ्रॉम हियर WA क्या होगा, तो हाउ मच वेट ऑफ आइस दैट सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन इज इक्वल टू इनिशियल वेट ऑफ सॉल्वेंट, इनिशियल वेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस कर दोगे WA। WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट विच रिमेन इन सॉल्यूशन। तो इनिशियल वेट दिया सॉल्वेंट का 796 ग्राम माइनस WA कितना है, ये अगर आप निकालते हो तो 796 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपने निकाला व्हाट इज WA इन सॉल्विंग दैट इक्वेशन, सर वो बोले 277.5। 277.3 के आसपास आ रहा है, कर दो उसमें से 518.6 के आसपास लिख दिया है। आई हैव टेकन स्मॉल रफली स्मॉल, वी हैव टेकन अप्रोक्सीमेशन, तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन का अप्रोच है, ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में। इसमें कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया, दैट स्टेप यू मे आस्क। ये क्वेश्चन आपका जेई में आया क्वेश्चन है। ये हमारा सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वेट है स्टार्टिंग में जो दिया है सॉल्यूशन के अंदर, इतना सॉल्वेंट बचा रहेगा जब सॉल्यूशन कूल करेंगे इस टेम्परेचर पर, तो ये सॉल्वेंट रहना नहीं चाहिए। बिकॉज क्या होता है जब सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं तो डेल्टा टी बढ़ेगा, तो आइदर वी ऐड मोर सॉल्वेंट पॉसिबल नहीं है, और रिमूव सॉल्वेंट, तो जितना सॉल्वेंट हमें नहीं चाहिए वो क्या करता है दैट सॉल्वेंट विल चेंज टू सॉलिड सॉल्वेंट, यहाँ पर आइस बन जाएगा। जितना सॉल्वेंट अनवांटेड है, कितना सॉल्वेंट हुआ अनवांटेड, हम W निकाल लेंगे। इस वेट को सॉलिड को मेंटेन करने के लिए इस टेम्परेचर पर कितना सॉल्वेंट सॉल्यूशन में होना चाहिए वो निकाल लिया। कितना सॉल्वेंट था स्टार्टिंग में, तो जो सॉल्वेंट नहीं चाहिए वो क्या करेगा, जो सॉल्वेंट हमें नहीं चाहिए दैट विल चेंज टू सॉलिड सॉल्वेंट, आइस बन के बाहर हो जाएगा सॉल्यूशन से। गॉट इट Yes. निनाद जी, बुझ लो। तो ये हुआ हमारा ये कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी दिए हैं असाइनमेंट डीपीपी में दे रखे हैं, आप यू कैन ट्राई योरसेल्फ। अगला प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। आज नहीं लेता उसको, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एक दो क्वेश्चन करना और कर सकते हैं इस पे टॉपिक पे। आपका जो डीपीपी है वहां से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नया टॉपिक में नया क्वेश्चन लंबा है मेरे पास सारे क्वेश्चन थोड़ा बड़े होते हैं, बड़े मीन्स अच्छे क्वेश्चन होते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा होता है।
इसमें दिया है डीपीपी 4 के ऊपर है आपका जो पेज ना डीपीपी 4 में, उसके जहाँ 4 लिखा है उसी शीट में ऊपर है क्वेश्चन नंबर, उसमें से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, छोटा क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ तो ऑलरेडी क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, हमने कर चुके हैं ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 18 रोज के ऊपर लिखा ना, डीपीपी 4 में क्वेश्चन 18 है, 4 के ऊपर है, यहाँ लिखा ना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 लिखा है शीट, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 दिया उसी पेज के ऊपर, उसके ऊपर है। डू दिस क्वेश्चन।